Hello everyone, let's learn vocabulary in minutes. ठीक है, so today we are going to learn vocabulary in minutes. ठीक है, so these are some important 10 vocabulary words. 10 vocabulary words we are going to learn today, which are newspaper based, editorial based vocabulary words. Okay, so let's start learning. Resign. Okay, resign is the first word, which is a verb. ठीक है, which is a verb to officially cancel, revoke or repeal a law, order or agreement. किसी भी एग्रीमेंट को या किसी भी लॉ को या किसी भी ऑर्डर को हम जब कैंसिल कर देते हैं, इट मीन्स हम उसको रिसाइन कर देते हैं, रद्द कर देते हैं. ठीक है, द सेंट्रल बैंक डिसाइडेड टू रिसाइन द लाइसेंस of the cooperative bank due to inadequate capital. कैपिटल इनएडुकेट थी, कैपिटल की कमी थी, इनएडुकेट कैपिटल थी कोऑपरेटिव बैंक में. सो दैट सेंट्रल बैंक ने क्या डिसाइड किया, सेंट्रल बैंक मींस आरबीआई ने क्या डिसाइड किया, आरबीआई ने डिसाइड किया कि जो कोऑपरेटिव बैंक का जो लाइसेंस है दैट विल बी रिसाइंड मींस टू cancel or to revoke. Okay, so I hope you have learned this word here just now. Okay, so next word is this is the first word of the my video. Okay, second word, okay, indignant, which is very extremely important word, that is adjective. Okay, so what do you mean by indignant? Indignant means feeling or showing anger. जब आप गुस्सा दिखाते हो, स्पेशली आप कब गुस्सा दिखा रहे हो, जब आपके साथ अनफेयर ट्रीटमेंट हो रहा है, देयर इज अ अनफेयर ट्रीटमेंट विद यू. ओके, so you are showing the anger, so that is indignant behavior. Okay, so आप इसको indignant को farmer से relate कर सकते हो, आप indignant word को farmer से relate करके learn कर सकते हो that farmers grew indignant over the government's sudden decision to lower minimum support price. So minimum support price आपने जब economics पढ़ी होगी तो आपने minimum support price भी पढ़ा होगा. So you know minimum support price जो है वो lower करने की वजह से, मतलब minimum support price होता क्या है, बेसिकली जो farmers को मिलता है प्राइस उनके प्रोडक्शन के लिए, वो उनके प्रोडक्शन के लिए और कम कर दिया गया. सो पैसा जो फार्मर्स को मिलना था वो पैसा कम मिला रहा है. दैट इज द रीजन फार्मर्स क्या कर रहे हैं, फार्मर्स अपना एंकर शो कर रहे हैं, फार्मर्स ग्रीव इंडिग्नेंट. ओके, सो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड. न्यूज़पेपर में, एडिटोरियल्स में ये वर्ड बहुत देखने को मिलता है. आपके एग्जामिनेशन के लिए, वॉट एवर एग्जामिनेशन यू आर प्रिपेयरिंग, आपके एग्जामिनेशन के लिए ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, दिस इज इंडिग्नेंट, द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज इंडिग्नेंट. ओके, सो आई एम प्रोवाइडिंग द प्रोनाउंसिएशन, आई एम प्रोवाइडिंग द पार्ट ऑफ स्पीच ऑल्सो. ओके, next word is resentful. This is the same word as indignant. Both are the same meaning, but resentful, basically resentful is adjective and indignant is also adjective, so both are the same, both are the synonyms. Okay, so resentful मतलब ये होता है आप गुस्सा शो कर रहे हो, आप unfair treatment शो कर रहे हो कि because you are feeling bitter, you are feeling upset. ठीक है, यहाँ पे आप anger शो कर रहे थे, but you are feeling upset. ठीक है, you are feeling upset, you are resentment. आपने resentment word you know communication skills में भी use कर सकते हो, न्यूज़पेपर्स में सुना होगा, और you know आपने editorials में भी ये word देखा होगा, resentful. okay, R-I-Z की जो है pronunciation हो रही है resentful. ठीक है, resentful is the correct pronunciation here. This is adjective, means आप किसी के बारे में बता रहे हो, that person is getting resentful. Okay, so adjective tells about noun. ठीक है, adjective tells about noun, noun के बारे में बताता है. तो here employees is a noun, noun के बारे में जो word बताता है that is resentful. Okay, so employees were visibly resentful after the management abruptly denied for their annual performance bonuses. इसका मतलब क्या हुआ, you know abruptly means suddenly. ठीक है, मैनेजमेंट ने सडनली डिनाई कर दिया, मतलब मना कर दिया कि भाई अब आपके प्रमोशन जो है, मीन्स आपके जो बोनस है वो आपको रिसीव नहीं होगा. सो एम्प्लॉयज लाइक सडन you know they were upset, they were showing resentment, that is called resentful. Okay, so resentment is also a word, resentment. Okay, resentment. Okay, so this is the same word, resentment or resentful. Okay, so I hope this word is extremely important, this word you have learned. Coming to the next word, that is pacify. Pacify मतलब क्या होता है, which is extremely important word. Pacify is a verb. Pacify means is action. आप किसी के
इज पैसिफाई इज बेसिकली यूज फॉर एक्शन, ठीक है। आप किसी को काम प्रोवाइड करो, आप किसी की कोई बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन में, सपोज आपकी मदर है, वो बहुत ज़्यादा टेंस सिचुएशन में, आप उनके पास गए, उनका हाथ पकड़ा, ठीक है, उनको आपने बताया सब ठीक हो जाएगा, लेट इट बी, वट एवर द सिचुएशन इज, लेट इट बी, ठीक है। सो आप किसी को काम दे रहे हो, आप किसी के एंगर को शांत कर रहे हो, दैट इज द पैसिफाई, टू पैसिफाई द सिचुएशन। सो ये एक वर्ब है, ठीक है। सो आप कभी भी पार्ट ऑफ स्पीच को इस तरीके से ना लेना, आप हमेशा पार्ट ऑफ स्पीच को अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस में जिस तरीके से यूज हो रहा है उस बेसिस पे, ये तो एक कॉमन पार्ट ऑफ स्पीच में बता रही हूँ, लेकिन हमेशा याद रखना पार्ट ऑफ स्पीच को लेके एक बहुत ज़्यादा डाउट होता है बच्चों के अंदर। सो हमेशा सेंटेंस को देख के पार्ट ऑफ स्पीच डिसाइड करना, मेरा तो ये कहना रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट इसमें जो आपको सेंटेंस यूसेज, ये सेंटेंस यूसेज मैंने प्रोवाइड करे हुए हैं, ठीक है। सो द लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्विकली डिप्लॉयड एडिशनल पुलिस फोर्सेस टू पैसिफाई द प्रोटेस्टिंग क्राउड्स, ठीक है। प्रोटेस्टिंग मतलब क्या होता है, विद्रोह करना, विद्रोह करना, विद्रोह, ठीक है, विद्रोह करना। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन क्विकली डिप्लॉयड एडिशनल पुलिस फोर्सेस टू पैसिफाई द प्रोटेस्टिंग क्राउड्स, ठीक है। सो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने मतलब डिप्लॉय किया, मतलब काम पर लगाया, किसको काम पर लगाया, एडिशनल पुलिस फोर्सेस को, सो दैट कि जो क्राउड है उनको शांति मिले, उनको सुकून मिले, वो ज़्यादा प्रोटेस्ट और ना करें, और सिचुएशन को और शांत बनाने के लिए लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने एडिशनल पुलिस फोर्सेस को डिप्लॉय किया। डिप्लॉय मतलब होता है मतलब टू गिव इट, टू असाइन समवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, टू असाइन समवन द रिस्पॉन्सिबिलिटी या फिर द ओनर्स, ठीक है। ओनर्स मतलब भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, ओके। नेक्स्ट यहाँ पे 4 वर्ड्स आप लोगों ने बहुत जल्दी लर्न कर लिए। सो माय बेसिक पर्पस कि आप जितनी जल्दी वर्ड्स को ग्रैब कर लो, लर्न कर लो इस वीडियो में, उतना अच्छा है आपके लिए। अपीज, अपीज मतलब क्या होता है, अपीज मतलब होता है द सेम वर्ड, दिस इज द सेम वर्ड, बट जो पैसिफाई वर्ड था उससे थोड़ा सा डिफरेंट है। पैसिफाई मतलब होता है किसी को शांत करना, बट अपीज मतलब होता है किसी को मनाना, ठीक है, किसी को मनाना। ऑफरिंग द agreeing to the demands, the controversial tax amendments was largely seen as a police। अब ये देखो, ये सारे न्यूज़पेपर के ही वर्ड्स में ला रही हूँ, ठीक है, न्यूज़पेपर के ही सेंटेंसेस में ला रही हूँ जो न्यूज़पेपर में ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है। The controversial tax amendment was largely seen as police move to appease a specific voter base, ठीक है। So appease मतलब सिंपल याद रखो, किसी को मनाना, आप अपने फादर को मना सकते हो, अपने पेरेंट्स को मना सकते हो, किसी को मनाना, that is called to appease someone, okay। So next word is spurious, बहुत ज़्यादा important word है। spurious is adjective, basically uses adjective, बाकी अब सेंटेंस में डिपेंड हो सकता है कि किस तरीके से वो वर्ड कौन से पार्ट ऑफ स्पीच में यूज हो रहा है। नॉट जेन्युइनली ऑथेंटिक मतलब नकली, स्प्यूरियस मतलब फेक, something which is fake, that is spurious, ठीक है। So health officials seized thousands of spurious life giving drugs, जो ड्रग्स ऐसे ड्रग्स थे जो कि दिखाते थे कि भाई वो लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं, बट वो एक्चुअल में नहीं थे, ठीक है। सो दैट इज, वो फेक थे, वो स्प्यूरियस थे, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड में आ जाते हैं, दैट इज पेरिलियस, पेरिलियस, पेरिलियस बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। दैट इज फुल ऑफ एंगर, जो बहुत ज्यादा गुस्से वाले होते हैं, खतरनाक होता है, हजार्डस होता है, दैट इज पेरिलियस, ठीक है। ग्लोबल इकोनॉमी रिमेन्स अ पेरिलियस स्टेट ड्यू टू राइजिंग इन्फ्लेमेशन एंड ऑनगोइंग सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शंस, ठीक है। सो मतलब ग्लोबल इकोनॉमी, जो पूरी इकोनॉमी है हमारी, उसके बारे में बात कर रहे हैं कि उसमें एक डेंजर है। डेंजर क्यों है, क्योंकि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हाई जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो रहा है, दैट इज द रीजन। नेक्स्ट वर्ड में आ जाते हैं टेनाशियस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वर्ड है, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड टेनाशियस, ठीक है। सो टेनाशियस मीन्स क्या होता है, टेंडिंग टू कीप अ फर्म होल्ड इनक्रेडिबली, मतलब टेनाशियस मतलब होता है डिटरमाइंड पर्सन, ठीक है, जो पर्सन बहुत ज़्यादा डिटरमाइंड है। सो आप कौन हो, यू आर अ टेनाशियस पर्सन, यू आर डिटरमाइंड पर्सन, आपको एग्जामिनेशंस क्रैक करने हैं, आपको सिलेक्शन लेना है, सो यू आर अ डिटरमाइंड पर्सन, यू आर अ टेनाशियस पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड में आ जाते हैं इनडिसाइसिव, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट वर्ड। इनडिसाइसिव मतलब क्या होता है, अनेबल टू मेक चॉइसेस, जो बंदा बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होता है, ठीक है, कंफ्यूजन वाली सिचुएशन होती है, दैट इज इनडिसाइसिव सिचुएशन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड में आ जाते हैं पैंडेमिक, पैंडेमिक मतलब महामारी, महामारी, दैट इज
जैसे कि अभी कोविड आया था, कोविड में क्या होता, दैट वी कॉल्ड एज अ पैंडेमिक, आउटब्रेक, महामारी, दैट इज कॉल्ड पैंडेमिक. ओके, सो दिस इज आवर 10th वर्ड. ओके, सो यहाँ पे हमारी जो प्रेजेंटेशन है वो एंड हो जाती है. नेक्स्ट में आपका ये छोटी सी क्विज है, अगर आपको ये करनी हो सो यू कैन डू द क्विज. ओके, सो आई होप आप लोग को ये मेरा जो चैनल है वो आप मेरा सब्सक्राइब करेंगे, और इस तरीके से और मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लाती रहूँगी, सो दैट आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो और आप एग्जामिनेशंस इजीली क्रैक कर पाओ. थैंक यू सो मच गाइस.